Hello all, welcome to the new session. In this session, we are going to discuss about the trapezoidal rule for double integration. Uh, in previous few session, we had a detailed discussion about the first integration, that is 1 degree integration. हमने उसमें trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule, गॉस क्वाड्रेचर, 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, ये जो सारी मेथड्स थी वो हमने लास्ट कुछ सेशंस में डिस्कस करी है. नाउ फ्रॉम दिस सेशन विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 3 which is about the double integration. So double integration we have two methods. First is trapezoidal rule for double integration, and next method is Simpson's 1/3 rule for double integration. So we will discuss one by one. So this session is about the trapezoidal rule for double integration. So directly move towards the numerical. Then we will discuss the step-by-step procedure to calculate the area under the curve by using trapezoidal rule if the double integration is there. Now first read the numerical carefully. Now here solve using trapezoidal rule. Integration of 0 to 1, integration of 0 to 1 x square y square dx dy, taking step length in x and y as 0.5, right? So here this is the numerical given. We have to calculate area under the curve by using trapezoidal rule. Now you can see here double integration is there, right? And upper limit and lower limit is given in the numerical for both the integration, and also the function is given in the form of like f of xy, right? Now here these step length in x and y means here the intervals for x and y is given, that is the value of h, and k is given in the numerical, that is 0.25, राइट. तो ये जो सारा गिवन डेटा है वो यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो हियर विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप. So the first step is write down first the given data. So write given. So here the function is given in the numerical, function in the form of f of xy. So the function is x square into y square. This function is given in the numerical. Now again the limits are given in the numerical, upper limit and lower limit. Now here remember double integration is there. So for first integration, so x0 is equal to 0 and xn is equal to 1, which is given in the numerical for x, and for y the limits are y0 is equal to 0 and ym is equal to 1, ym is equal to 1 again, which is given in the numerical. Now here taking step length in x and y, that means the interval for x and interval for y is given in the numerical, that is 0.5. So interval for x is denoted by h and interval for y is denoted by k. So that means the h and k value is also given in the numerical. So h is equal to 0.25, also k is equal to 0.25, right? So this is the given data. So ये given data use करके हमें area under the curve calculate करना है. Now again here starting from the first, that in first step you have to calculate all the values of x with respect to this h and this k value, right? So here the first step is to calculate values of x and y with respect to h and k, right? So ये जो h और k की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन है उसको कंसिडर करके हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट?
सो फर्स्ट हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द x0। सो हियर x0 इज इक्वल टू 0, राइट। सो मैं स्टार्ट करूंगा x0 से। सो x0 इज इक्वल टू 0 जो कि मुझे न्यूमेरिकल में गिवन है, यू कैन सी हियर। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द x0, नेक्स्ट इज x1। x1 इज इक्वल टू, वी हैव फॉर्मूला लाइक x0 प्लस h, right? So x0 plus h means 0 plus h is equal to 0.25. So here x0 is equal to 0.25. Similarly, calculate the value of x2. So x2 के लिए equation मैं लिखूंगा x0 plus 2h, right? 0 plus 2 multiply by 0.5, तो मुझे मिल जाएगा 0.5। सिमिलरली x3 मैं कैलकुलेट करूंगा, x3 के लिए फॉर्मूला लिखूंगा x0 प्लस 3h इज इक्वल टू 0 प्लस 3 multiply by 0.25. So after calculation you will get the 0.75. Similarly calculate the value of x4. So here x4 के लिए फॉर्मूला x0 plus 4h is equal to 0 plus 4 multiply by 0.5. So here you will get the 1. Now here 1, it is nothing but the value of xn because the upper limit is 1, right? So हमें upper limit automatically यहाँ मिल जाएगा starting from the lower limit and ending at the upper limit. Now similarly calculate the values of y. Now starting from the y0. So y0 is equal to 0, which is given in the numerical, you can see here. Now y1 is equal to y0 plus k, right? Because interval जो y के लिए है वो k है. So k is equal to 0.25, again which is given in the numerical. So here 0 plus 0.25 is equal to 0.25. Similarly calculate the value of y2. So y2 के लिए फॉर्मूला में लिखूंगा y0 प्लस 2k, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो मुझे मिलेगा 0.5। सिमिलरली मैं y3 के लिए कैलकुलेट करूंगा। सो y0 प्लस 3k, सो हियर 0 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0.75। एंड लास्टली y4 के लिए y0 प्लस 4k इज इक्वल टू 0 प्लस 0.25 multiplied by 4 is equal to 1, which is the value of ym, which is upper limit in case of x, right? So इस तरीके से आपको x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है with respect to the values of h and k, right? So ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेप। अभी ये जो पहला स्टेप था ये आपने ऑलरेडी जब हमने वन डायमेंशनल इंटीग्रेशन जब पढ़ा था, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, उस केस में भी ये मेथड जो था सेम था। उस केस में आपको खाली x की वैल्यू निकालनी थी, इस केस में आपको y की वैल्यूज भी निकालनी है, राइट? बट द मेथड इज सेम। नाउ हियर इन दिस डबल इंटीग्रेशन ट्रेपेजॉइडल रूल की केस में जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तब वहाँ पे थोड़ा आपको अलग से वो स्टेप परफॉर्म करना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ x एंड y, we'll move towards the next step. So the second step is to calculate the values of f of xy. So the second step is calculate values of f of x comma y, right? Because we have a function which is given in the numerical, that is f of xy is equal to x square multiply by y square। ये फंक्शन हमें दिया है, तो इस फंक्शन को कंसिडर करके हमें सारी f ऑफ x कॉमा y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, राइट? तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन लिखता हूँ।
मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं x0 को कांस्टेंट करूंगा, x0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। x0 को मैं कांस्टेंट कंसिडर करके मैं अलग अलग y की वैल्यू के लिए मैं उसे कैलकुलेट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब इक्वेशन लिखूंगा, सो इफ द x0 इज कांस्टेंट, सो हियर f ऑफ x0 y0 ये हो गया। उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा f ऑफ x0 y1, f ऑफ x0 y2, f of x0 y3 and f of x0 y4, राइट। सो मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करते टाइम मैंने क्या किया, x0 को कांस्टेंट कर दिया। सो x0 को मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया, यहाँ आप देख सकते हो x0 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 x0, और मैंने y की वैल्यू खाली चेंज की है। सो इस तरीके से अगर मुझे f ऑफ x0 y0 अगर कैलकुलेट करना होगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये x0 और y0 की वैल्यू जो होगी वो इस फंक्शन में पुट करूंगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर में, तो मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा लाइक यू कैन सी हियर x0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y0 स्क्वायर, राइट। तो x0 और y0 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है। x0 मैंने क्या कैलकुलेट किया है, x0 इज इक्वल टू 0 जो कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और y0 भी मेरे पास है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है y0। तो मैं सिंपली ये जो x0 और y0 की वैल्यू है वो मैं उसमें पुट कर दूंगा और कैलकुलेट करूंगा। जैसे x0 स्क्वायर प्लस y0 मल्टीप्लाई बाय y0 स्क्वायर, सो हियर 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 0, राइट। सिमिलरली फॉर दिस सेकेंड केस f ऑफ x0 y0, यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x0 कांस्टेंट है बट y की वैल्यू चेंज हो गई है, सो y1। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है, y0 तो मेरे पास 0 है बट y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है 0.2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वायर। सो इस 0 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली कैलकुलेट द दिस टर्म एंड दिस टर्म, f ऑफ x0 y0 के केस में मैं लिखूंगा यहाँ पे x0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y2 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y3 स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y4 स्क्वायर, राइट। सो ये 0 से मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो सारी टर्म मुझे मिल जाएगी 0, राइट। ये हो गया पहला कैलकुलेशन। उसके बाद सेकेंड केस में मैं क्या करूंगा, सेकेंड केस में क्या करूंगा, मैं x1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंसिडर करूंगा। सो हियर x1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन मैं ये बनाऊंगा, इफ x1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो हियर x1 y0 f of x1 y1 f of x1 y2 f of x1 y3 and f of x1 y4, राइट। फिर से मैं ये जो इक्वेशन है मेरे पास गिवन इक्वेशन है, फंक्शन है, उसमें ये x1 y1 x0 y0 सॉरी x1 y0 x1 y1 x1 y2 x2 x1 y3 x1 y4 ये वैल्यू पुट करूंगा और मैं कैलकुलेट करूंगा वैल्यूज, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यूज मेरे पास होगी, वो आप कैलकुलेट करिएगा। मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो द फर्स्ट वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन इज 0। नाउ 0.0039, now 0.0156, now here 0.0351, now here the last value is 0.0625। ये हो गया सेकेंड कैलकुलेशन। सिमिलरली आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन में थर्ड नंबर में आपको x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है और इसी तरीके से आपको इक्वेशन बनाने हैं और कैलकुलेट करने हैं। गिवन फंक्शन में पुट करो, आपको वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट इसमें आपको x
x3 कांस्टेंट करना है, नेक्स्ट इसमें आपको x4 कांस्टेंट करना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ f ऑफ xy। मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से करना है। सो आई होप ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गई होगी। सो मूविंग टूवर्ड द थर्ड केस। सो थर्ड केस में हम क्या करेंगे, x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं फंक्शन किस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा, f ऑफ x2 y0, f ऑफ x2 y1, f ऑफ x2 y2, f of x2 y3 and f of x2 y4, राइट। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिएगा और कैलकुलेट करिएगा, ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा 0, उसके बाद आपको मिलेगा 0.0156, नेक्स्ट आपको मिलेगा 0.0625, नेक्स्ट आपको वैल्यू मिलेगा 0.1406, सो हियर 0.1406 and the last value is 0.25. Similarly, calculate the next, that is keep x3 is equal to constant, right? Keep x3 is equal to constant and calculate the remaining values like f of x3 y0, f of x3 y1, f of x3 y2, f of x3 y3 and f of x3 y4. Similarly calculate the next value by keeping x4 is equal to constant, right? So x4 को constant करिएगा, आपको values मिलेगी f of x4 y0, f of x4 y1, f of x4 y2, f of x4 y3 and f of x4 y4, राइट। सो इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, राइट। थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल लग सकता है, बट इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। उस तरीके से आपको मार्क्स भी मिलते हैं किसी एग्जामिनेशन में। मतलब लास्ट किसी एग्जाम क्वेश्चन पेपर में मैं देखा था 12 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा गया था। सो लेंदी न्यूमेरिकल होगा, लेकिन उस हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलेंगे, राइट। सो हियर फॉर दिस केस दैट इज नंबर 4, राइट, एंड दिस इज नंबर 5। तो इस केस में x3 अगर मैं कांस्टेंट करता हूँ तो वैल्यूज मिलेगी मेरे को 0, उसके बाद 0.0351, उसके बाद 0.1406 and next value is 0.3164 and last is 0.5625, and these last values are 0, 0.0625, 0.25, 0.5625 and 1, राइट। सो इस तरीके से आपको नेक्स्ट जो भी स्टेप नंबर 2 है उसमें आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। इन सारी वैल्यूज के लिए आपको टेबल बनाना है, और वो टेबल बनने के बाद फिर आप लास्ट में ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करेंगे और उससे आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो likewise you have to calculate all the values by keeping the x1, x2, x3 and x4 constant, and after calculating the value, all these value, you have to move towards the step number 3. Now here in step number 3
you have to prepare a table for all these values, right? So इन सारी values के लिए आपको table prepare करना है, right? तो table किस तरीके से prepare करना है? So the third step is to make a table for all the values of f of xy. जो step number 2 में हमने जितने भी f of xy की वैल्यू कैलकुलेट की है, x, y की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज के लिए हमें टेबल बनाना है। अभी टेबल किस तरीके से बनाना है आप थोड़ा यहाँ पे केयरफुली देखिएगा। सो हियर we have a row. So here this row is for all the values of x and this column is for all the values of y. So मेरे पास x और y की वैल्यू है जो कि मैंने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट की थी, तो वह मैं सारी यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 और x4। सिमिलरली मैं इस कॉलम में लिखूंगा y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 एंड लास्टली y4 की वैल्यू, राइट। सो क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी है स्टेप नंबर 1 में, सो वन बाय वन में ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हियर x0 इज इक्वल टू 0 जो कि मैंने कैलकुलेट किया था। सिमिलरली हियर x1 इज इक्वल टू 0.25 मैंने कैलकुलेट किया था। आपको स्टेप नंबर 1 में ये वैल्यू मिल जाएगी। Now here again x2 is equal to 0.5, x3 is equal to 0.75 and lastly x4 is equal to 1. Similarly all the values of y0 is equal to 0, y1 is equal to 0.25, y2 is equal to 0.5, y3 is equal to 0.75 and y4 is equal to 1, right? So इस तरीके से हम सारी x और y की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, राइट। नाउ ये जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें सारी f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आएंगी। अभी वो किस तरीके से आपको लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले जब मैंने स्टेप नंबर 2 में हमने जब कैलकुलेट किया था तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किया था और फिर f ऑफ x0 y0, f ऑफ x0 y1, f ऑफ x0 y2 और f ऑफ x0 y3 और f ऑफ x0 y4 कैलकुलेट किया था। सिमिलरली सेकंड केस के लिए हमने x1 को कांस्टेंट किया था और उसी तरीके से हमने ये सारी f ऑफ xy की वैल्यू कैलकुलेट की थी, राइट। सो इस तरीके से इस टेबल में आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इस x0 को कांस्टेंट करता हूँ तो मुझे f ऑफ x0 y0 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x0 y0, ये x0 कांस्टेंट तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ f ऑफ x0 y1, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ f ऑफ x0 y2 क्योंकि x0 का जो कॉलम है वो कांस्टेंट रहेगा और y की वैल्यू चेंज होगी, तो जो मैंने कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 2 में वो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सिमिलरली फॉर x1, सिमिलरली फॉर x2, सिमिलरली फॉर x3 एंड सिमिलरली फॉर x4। सो हियर वी हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ f ऑफ xy जो कि हमने कैलकुलेट की थी, राइट। सो मैं यहाँ पे वो वैल्यूज लिख लेता हूँ, मैं ये इरेज कर देता हूँ पहले। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट, कि आपको किस तरीके से वैल्यू लिखना है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो वैल्यूज थी वो थी 0 0 0 0 और 0। यू कैन सी हियर व्हेन x0 is equal to constant all the values of all the f of xy values are 0, right। तो वही सिमिलर वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। नाउ नेक्स्ट इज इफ x1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो x1 जब कांस्टेंट मैंने कंसिडर किया था तो मैंने सारी वैल्यूज कैलकुलेट की थी, वो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले वैल्यूज है मेरे पास 0, उसके बाद 0.0039, सो हियर 0.0039, नेक्स्ट इज 0.0156, next is 0.0351 and 0.0625. Similarly, write down all the values when we kept x2 is equal to constant, right। So if x2 is equal to constant, values हमें मिली थी, पहली वैल्यू मेरी थी 0, उसके बाद मिला था हमें 0.0156, नेक्स्ट वैल्यू इज 0.0625,
next value is 0.1406, and the last value when x2 is equal to constant 0.25. Similarly, when x3 is equal to constant, write down all the values like here 0, then 0.0351, 0.1406, then 0.3164 and 0.5625. Right now, last when x4 we kept x4 is equal to constant, so उस केस में हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी. पहली वैल्यू थी 0, उसके बाद था 0.0625, उसके बाद था 0.25, उसके बाद वैल्यू थी 0.5625 एंड द लास्ट वैल्यू इज 1. सो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल बनाना है, जो कि वैल्यूज, जो कि टेबल बनेगा आपका ऑल द वैल्यूज फॉर एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि हमने स्टेप नंबर सेकंड में कैलकुलेट की थी. राइट, अभी इसके बाद हमें डायरेक्टली ट्रेपेजॉइडल रूल का इक्वेशन यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी फॉर्मूला आपको कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है, वो फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए. सो द फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल इन केस ऑफ अ डबल इंटीग्रेशन. सो द फॉर्मूला इज स्टेप नंबर 4, calculate area under the curve, that is A, area under the curve, that is A, and the formula for trapezoidal rule in case of a double integration is capital A is equal to h by 2 multiply by k by 2 into the bracket sum of square A1 terms, right? Sum of square A1 terms plus sum of square A2 term plus sum of square A3 term plus sum of square A4 term plus sum of square A5, A6, n number of square you can consider. So this is the equation for calculating area under the curve by using trapezoidal rule. अभी आपको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये इक्वेशन कैसे यूज करना है, सम ऑफ स्क्वायर A1, सम ऑफ स्क्वायर A2, ये स्क्वायर कहाँ पे है, A1 स्क्वायर कहाँ पे, A2 स्क्वायर कहाँ पे, A3 स्क्वायर कहाँ पे और A4 स्क्वायर कहाँ पे. तो ऐसे n नंबर ऑफ स्क्वायर आप बना सकते हो. सारे स्क्वायर की जो टर्म्स होगी, स्क्वायर की टर्म्स मतलब ये टर्म्स जो कॉर्नर में टर्म्स होगी, वो टर्म्स को आप वो टर्म्स की आपको सम करनी है और उसको ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है. कैसे करना है देखिए, टेबल हमने बना दिया है, राइट. सो हियर दिस टेबल यू हैव टू मार्क स्क्वायर. अभी स्क्वायर मार्क कैसे करना है, मैं एक स्क्वायर यहाँ पे मार्क करता हूँ, राइट. इसे मैं कहता हूँ A1, राइट. सेकेंड स्क्वायर मैं मार्क करूंगा जो कि यहाँ पे होगा इस तरीके से, इसे मैं कहता हूँ A2. थर्ड स्क्वायर मैं मार्क करूंगा यहाँ पे, इसे मैं कहता हूँ A3 स्क्वायर. सिमिलरली हियर दिस इज A4. अगेन हियर this is A5, this is
A6, this is A7, this is A8, ये हो गया A9, A10, A11, A12, A13, 14, 15, and this one is A16. टोटल 16 स्क्वायर मैंने मार्क किए यहाँ पे, राइट। अभी ये स्क्वायर की जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स है वो स्क्वायर की जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपको उसका सम आपको करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द A1 टू द A16, हर एक स्क्वायर के लिए आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। जैसे A1 स्क्वायर के लिए आपको 4 कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, A1 स्क्वायर के लिए आपको पॉइंट मिलेंगे जैसे ये 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये एक पॉइंट है और उसके बाद ये एक पॉइंट है। तो आप जब फॉर्मूला में लिखोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे, हियर h is equal to 0.25 divided by 2 multiply by 0.25 divided by 2। अभी सम ऑफ स्क्वायर A1 टर्म्स, तो A1 की टर्म्स कौन सी है, पहला है 0, फिर उसके बाद 0, फिर ये 0.0039, फिर उसके बाद ये फोर्थ टर्म है 0। तो यहाँ पे मैं जब लिखूंगा सो A1 की टर्म्स होगी 0 प्लस 0 प्लस 0.0039 प्लस 0, दिस इज A1 टर्म। नाउ सेकेंड टर्म A2 के लिए टर्म्स मेरे पास कौन सी है, ये है A2। रुको मैं ये इरेज कर देता हूँ, मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। सो A2 के लिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 था। A2 के लिए टर्म्स कौन सी है, A2 के लिए ये 0 है, ये भी 0 है, ये है 0.156, ये है 0.0039। तो जब मैं उसके लिए लिखूंगा तब मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, 0 प्लस 0 प्लस 0.0039 प्लस 0.0156, 0.0156, ये हो गई A2 के लिए, राइट। नाउ सिमिलरली A3 फॉर A3 अप टू A16, ऐसा पूरा इक्वेशन आपको मिलेगा, उसको कैलकुलेट करो, फाइनली आपको मिलेगा एरिया अंडर द कर्व, राइट। कितने स्क्वायर है टोटल, टोटल स्क्वायर है 16। हर स्क्वायर के लिए उसको आपको उसकी टर्म्स मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, वो कॉर्नर पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है और इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अभी मैं पूरे के पूरे स्क्वायर यहाँ पे कवर नहीं कर सकता बिकॉज वीडियो जो बहुत लेंदी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से स्क्वायर कंसिडर करने हैं। हर स्क्वायर के लिए कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे अगर A5 के लिए मैं बनाऊंगा तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गए, A6 के लिए भी मुझे ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, सिमिलरली फॉर A7, सिमिलरली फॉर A8 अप टू द A16, राइट। सो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग all the values, after adding all the values of or all the terms of all the square from A1 to A16, you will get the final answer, and the final area under the curve is 0.1184. So this is the final answer for this question, राइट। सो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता हो गई होगी। आई होप आप और प्रैक्टिस करोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था, शायद इसलिए ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल है। अगर इस कम मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा तो मे बी जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो कम आपको बनाने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द
how many values of x and y you will get, right? So I hope ये topic आपका clear हो गया होगा. So thank you for this session.